Hi Purvi, welcome on board. Hi, sir. How are you? How does it feel? 99.41 CAT, FMS, I am Indore, Lucknow, Kozhikode, IFT, MDI, NMMS, SCMHRD. Oh my goodness, how does it feel, yaar? How does it feel? Sir, it feels really great. क्या And it's a बात. long journey. Now results have come, so I'm really happy. जा कहाँ रही है फाइनली? पहले वो बता मेरे को. इतनी ऑप्शंस है लाइफ के अंदर, जा कहाँ रही है? Sir, I'm going to FMS now. बहुत बढ़िया. Going to FMS, boys and girls, the dream business school of many people, and she's got one seat at FMS. बहुत बहुत अमेजिंग. Today we going to talk about her journey, her ups and downs. इसने पढ़ाई कैसे की, कितने नंबर ऑफ आवर्स किए, 3 महीने पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, बिकॉज अभी कैट को अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने बाकी हैं. तो पूर्वी लेट्स बिगिन. बाय द वे इसका DILR 92 परसेंटाइल है, वर्बल 99 परसेंटाइल और क्वांट भी 99 परसेंट, और ये नॉन इंजीनियर है फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज. अच्छा, बिफोर आई गेट स्टार्टेड यार, ये किरोड़ीमल के सामने FMS नहीं है, आसपास नहीं है दोनों ये? So it's bang opposite, एकदम gate to gate. Gate to 5 meter gate. walk. But दो रोड है बीच में, that's it. क्या बात है. तो जब पढ़ रही थी तो मतलब वहाँ से कॉलेज से निकलते निकलते FMS से दिल कर रहा था यहाँ आना है, यहाँ पढ़ना है? So actually जब मैं first time admission के लिए गई थी to KMC, so I by chance reached FMS instead of KMC, and मैं ढूंढ रही थी FMS कहाँ है, Google Maps तो यहाँ दिखा रहा है, I mean KMC कहाँ है. तो फिर देखा तो सामने ही KMC था, but I wanted to go into FMS, but मेरे को लगा नहीं था I would make it. So by God's grace now I've done. लवली. ये एक्चुअली ये लोगों को पता नहीं यार, लगता नहीं है. कैट देख, जब तू कैट दे के बाहर आई थी लग रहा था 99.41 आएगा. सब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. ऊपर से DILR सेक्शन इस बार बहुत अजीब आया था, so I was scared, and plus this was now my second attempt, so I was more scared. Yeah. First time you gave, I think you were 93 odd percent, 92 odd, 93. Yeah, I got 93 percentile, and I got a call from XLRI as well अच्छा, that year. क्या The, बात all है. the baby IMs, but I wanted to give it another chance. So That's that's so amazing. That's so amazing यार. So amazing. तो people who are low percentile, जब पहली बार कोई कॉलेज मिल रहा है, रुक सकते हो. ये बंदी रुकी, और ये इंजीनियर भी नहीं. बाय द वे तेरा बैकग्राउंड क्या, लाइफ साइंस कुछ है ना? लाइफ साइंस. Life science. So I had zoology, botany, and chemistry as my subjects. और वहाँ से Totally bio. वहाँ से क्वांट में 99 परसेंटाइल. भाई you're a case study पूर्वी, you're a role model for many people. Let's begin यार. क्वांट जिनका वीक है, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? Okay, so I think you should solve as many questions as you can, first of all. Okay, what I did usually, I spent a lot of time on theory. I used to think कि अभी मेरा theory तो हुआ नहीं है, how can I start practicing? So what I advise to people is you start practicing along with studying theory. So solve as many questions as you can. You can give as many mocks as you can. That mocks really help. Great. Any mocks you can go for. And initially you'll feel that it's taking too long, so the most important thing in mocks is that not just giving mocks is the requirement, analyzing them is also really important. That's the main part of it. ग्रेट. सो भाई So, अब जस्ट yeah. सॉरी टू इंटरप्ट इन हियर. पहली बात तो क्वांट्स भी जब करते हो, जब हम पहले क्वांट्स की बात कर रहे हैं, क्वांट्स करते हो अपनी फॉर्मूला बुक बनाओ, नोटबुक बनाओ, लिखना शुरू करो. अगर मॉक्स के अंदर जा रहे हो, गिव एनी कोचिंग के मॉक, विच एवर, जहाँ से तुम्हें लगे कोई भी मॉक दे सकते हो. अगर कैट किंग स्टूडेंट हो तो रियल कैट मॉक दो, उसके पीछे हमने एनालिसिस काफ़ी दिए हुए हैं पूर्वी, तो काफ़ी एनालिसिस है उसके अंदर, वो कर सकते हो. पर जो मर्जी करो, पर उसको एनालिसिस करो. पूर्वी क्वांट का एनालिसिस बता. क्वांट, तू नॉन इंजीनियर है, तू मॉक दिया वहाँ पे 40 मिनट का क्वांट सेक्शन हो गया, पूरा का पूरा मॉक दिया. हाउ वुड यू एनालाइज द पेपर ऑफ क्वांट्स? So when the results came, मैं देखती थी कौन सा मेरा सही हुआ है, and you can also go for alternatives to solve some question. Even if it's right, you should analyze it. कि ऐसा भी होता है कभी कभार I've solved it with some other way, असली में the analysis made it's being given the other way. So for the right questions you can do this, and the questions that you have done wrong, you have to go to the analysis, go to the solution and see what the theory behind it is. So मैं ऐसे करती थी कि मैं देखती थी क्या गलत हुआ, and sometimes it was like I didn't even know the concept that question is having. So फिर मैं जाके सर्च करती थी वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे या जहाँ पे भी, ऑन गूगल ऑल्सो. सो उससे सीखती थी, एंड देन आई मेड नोट्स ऑफ इट, नोट्स बना के, सो दैट दे आर हैंडी, बिकॉज यू समटाइम्स फॉरगेट, यू डोंट remember formulas after reading just once. So you need to have notes for quant as well.
ग्रेट, So that was all I did. लवली। तो भाई जहाँ पे भी जाके तेरे को वो वाला टॉपिक है तेरे पास, उसको ढूंढ, अब किताब में ढूंढ, अपनी बुक्स में ढूंढ, डैशबोर्ड पे आके ढूंढ, नहीं तो गूगल में ढूंढ, अपना वो कंसेप्ट तेरे को क्लियर हो जाना चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर। बट यू नीड टाइम। तूने कितने कितने महीने प्रिपरेशन किया? बाय द वे, आई रिमेंबर यू स्टार्टेड अर्ली, यू स्टार्टेड लॉन्ग बैक इन Yeah. सेकंड ईयर, राइट? सेकंड ईयर ऑफ द Yeah, कॉलेज। so when I got into graduation, मेरे को 1 साल लग गया to decide finally that I want to do MBA. So I started in the beginning of second year, and second year में start करके initially I couldn't give that much time. I used to give 1 hour or 2 hour a day. That's it, because I was having graduation side by side going on. So in the first attempt I scored 93. Like when CAT was closed, I used to study more. I didn't study 1 or 2 hours just. I used to study more those days. So in the first attempt it was 93, and then I decided to go for another attempt. So by August came, or by July came, I think I had all the concepts theoretically clear. एक कंसेप्ट वाइज तूने क्लियर कर लिया। पीपल स्टार्ट अर्ली भाई, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर जून जुलाई तक तूने खत्म किया। बट मुझे याद है तूने लास्ट के 3 महीने ज़्यादा रिगर मारी, उसके पहले तो चिल कर रही थी, एक दो घंटे रोज पढ़ रही थी। Yeah, exactly. That's what I was going to tell you. Last के 3 months जो थे उसमें I gave mocks, and initially it used to take me 2 days for a mock to attempt the mock and then analyze it, and then slowly the time also started getting less. I mean, I used to take lesser time in analyzing things, and my percentile also improved. So वो gradual process है, आपको थोड़ा जल्दी you will have to start at least 3-4 months before the exam. You will have to start giving mocks, and you have to be consistent in giving them. मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, सीक्रेट सॉस ऑफ गोइंग टू एफएमएस और क्रैकिंग ए टॉप सारी आईएम्स कॉल की। क्या एक नॉर्मल बच्चा है, सुपर टॉपर नहीं है, वो दिन के 3 से 4 घंटे कमिट करता है, से आज जून को वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, 3 से 4 घंटे रेगुलर मारता है वो, बाकी कामों को डीप्रायोरिटाइज करके, और साथ में अपना चैलेंज लेता है दिमाग के अंदर, मैं 30 के 30 मॉक दूंगा। Do you think it's a good amount of time and good amount of effort he's putting in, and if he promises this and completes it, FMS हो सकता है उसका? So seriously हो सकता है, because main जो mocks मैंने दिए थे, number of mocks, that was in the last 3 months. Plus if you have 3 months, you have to give 30 mocks. I gave 25 mocks, around 25. So if you have 3 months, you have to give 30 mocks. So it's 3 days per mock. That's more than enough. Great. And if you analyze things, you have to study the concepts as well. So 3 days are more than enough. Lovely. थोड़ा सा वर्बल की बात कर लेते हैं। बाय द वे, तूने जिंदगी में, मैं तेरे को जानता हूँ, किताबें तूने पढ़ी नहीं है, अखबार तू पढ़ती नहीं है, ऊपर से देखती है और आगे बढ़ जाती है, पर वर्बल में 99 परसेंटाइल। Yeah, so there's a book of Norman Lewis called The Word Power. So I'll recommend everyone to study that, because it really improves your vocabulary. And sometimes what happens in reading comprehension also, we don't understand the paragraph completely just because we don't have that good vocabulary. So improving vocabulary is really important. Secondly, again I'll come to mocks. You'll have to, sometimes what people do is they leave analysis of reading comprehension, the verbal part, they leave it. So we don't have to do it. We have to analyze that as well. I know it's really boring. ऐसा मत बोल यार, ऐसा मत बोल। मैं पढ़ाता हूँ वर्बल एबिलिटी, तो ऐसा बोलेगी अभी। but मतलब मेरे को तो लगता था at least, but still I had to do it. इसलिए मैं अभी हिंदी में पढ़ाता हूँ इनको, तेरे को पता होगा, मेरे अंग्रेजी में इनको हिंदी में पढ़ाता हूँ। भाई वर्बल पढ़ लेना, ये ऐसी चीज़ है जो इंडिया के बच्चों को सबको बोरिंग लगती है, इसलिए मैं इसको इंटरेस्टिंग में पढ़ाता हूँ। बट पढ़ना, अगर पसंद कोई चीज़ नहीं है तो उससे फॉल इन लव तो करना पड़ता है ज़बरदस्ती, नहीं? राइट पूर्वी? इफ यू करना पड़ेगा, because it's really essential part of CAT. Like you can't let go of one complete section. Right. So और पहला सेक्शन ही वर्बल का आता है, राइट? Exactly. If you spoil that section, your mood gets spoiled, और आगे का भी even if you know it, आप गलत कर दोगे कभी कभार। हैंगओवर रहता है पहले का, ओह शिट ये गड़बड़ हो गई। फिर डीआईएल टफ होता है, उसका हैंगओवर तो अलग ही होता है। फिर उसमें क्वांट्स में बकअप करके वो 40 मिनट के अंदर, तो पहला सेक्शन अटैक करो, तुम उड़ गए, फटाफट हैंगओवर उतारो, दूसरा सेक्शन 40 मिनट के अंदर, पिछला हैंगओवर निकाल के अगला हैंगओवर चढ़ा के, फिर पिछला उतार के, फिर अगला, भाई ये करके तुम्हें 3 बार ही प्रोसेस करनी है। क्या बात है पूर्वी यार, क्या बात है पूर्वी, दिस इज सो अमेजिंग। हाँ बोलो। Yeah, and one more thing, the most tricky and difficult section I found in verbal was that rearrangement of sentences to form a paragraph. So if someone is weak at verbal, or anybody who's preparing, I think you should devote good amount of time to that section as well, apart from RC, because those sections are 1 mark. I mean 1 question. RC is related
there are 4 questions around. So if you don't understand RC, you spoil all the 4 questions. So you should give time to all the questions जो अब अलग से आते हैं, like the one question, it's not related to some other question, जिससे you can do that answer correctly. बहुत बढ़िया, ये बहुत सही टेक्निक बताई. मैं भी यही बात बोलता हूँ इनको. यूट्यूब वीडियो तूने भी सुना होगा. तो पहले यार अपन बैठ के ये दूसरे सेक्शन है जो कि नो नेगेटिव मार्किंग है, इस पे भी आप एक्सेल कर सकते हो. एंड दिस स्मॉल बाइटेबल चंक्स विच यू कैन एक्चुअली पुल इट अप एंड स्टार्ट सॉल्विंग दोज एज वेल. तो उसमें गॉड बन जाओ. फिर आरसी तो कंटिन्यूस करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते बेड़ा पार हो जाएगा. क्या बात है यार. अबाउट योर DLR सेक्शन, you screwed up your DLR. Sorry for saying screwed up. 99.41 है भाई की टॉपर है. बट यू नो आई ऑलवेज से life is too short to do your own mistakes. इसलिए learn from other people's mistake, right? That's the reason we're doing this session. तो वो भी जा रही है FMS, वो बात बढ़िया. बट DLR में क्या गड़बड़ क्या होगी? कौन सा स्लॉट था तेरा? 1 2 3? मेरा था 2 स्लॉट था मिडिल में. हाँ ठीक है. हाँ DLR में what do you think what you could have done better? क्या गलती क्या हो गई? So practice, because it was not that interesting thing to study. Still I studied it, I solved the mocks and all, but yes, I devoted more time to quants because I like maths and all. That's why. So you have to give equal amount of time to every section, and I think I would recommend, in fact, to everybody, give time to DI LR more than any other section, because that's the trickiest part, and I've seen this last time. Right. So you won't know कि किस तरह का आ जाए वो set, and you can practice as many as you want kind of questions, but वहाँ पे कोई वो नए तरीके के question present कर देंगे. So it's scary part. Right. और पेपर सेटर भी पिछली बार स्टैटिस्टिशियन था और उनके खून में स्टैटिस्टिक्स है, तो पिछले 5 साल में स्टैट्स मुश्किल आ रहा है. और ये इतनी नालायक बच्ची, इसने दो ही सेट सॉल्व किए होंगे तूने मेरे ख्याल से. तो अगर 92% आ रहा है 2-2.5 सेट. मैंने अटेम्प्ट तो 3-4 किए थे, बट हाँ कंप्लीटली तो 2 ही हुए होंगे, एंड थर्ड सेट में एक दो क्वेश्चन मेरी. क्या बात. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल यार. फाड़ दिया. एंड यू सेड 25 मार्क्स, 25 मार्क्स. अराउंड 25, या 25. ग्रेट यार, दिस इज सो अमेजिंग. और ये ना अभी बोल रही है मुझे वो पसंद नहीं था, मैं नहीं पढ़ती थी. इतना रिगर मारा ना इस बंदी ने. अच्छा लास्ट के 3 महीने तूने 6-8 घंटे पढ़ा दिन का? सर वो तो किया ही है, वो तो पढ़ा ही है, मैं ये नहीं कह रही, बट इट्स लाइक you have to force yourself to study something. से तो मेरे साथ पॉइंट में नहीं होता था, जैसे I had studied it happily, but इनमें I had to push myself कि करना तो है यार, नहीं करेंगे तो कैसे होगा. बिल्कुल. तो तुम ये लेसन मत लेके जाना. हाँ पूर्वी को वर्बल पसंद नहीं, हाँ मुझे भी पसंद नहीं. अबे उसको पसंद नहीं था, उसने इतनी रिगर मारी है. मुझे याद है टुवर्ड्स द एंड इस बंदी ने इतने सारे वेबिनार्स भी अटेंड किए. हम GDP की बात करेंगे. इतना अमेजिंग मेहनती बंदी, हर जगह पे नाम पूर्वी, हर जगह पे ना. इनफैक्ट कल परसों करवाया था ना हमने, कल रात को FMS वाला सेशन, सीनियर्स वाला. परसों रात को इनको सीनियर से मिलाया. वहाँ पे पूर्वी का नाम कोई और हो ना, पूर्वी तो होती है वहाँ पे. नहीं यार तेरी जो रिगर है, तूने बहुत रिगर मारी है. अच्छा वन लास्ट थिंग, क्विक अबाउट GDP एज वेल. एक बार इनका कॉल आए GDP का, संभाल लेंगे पूर्वी? या सर बिल्कुल हो जाएगा, because the dashboard that is there, that's really helpful. The live videos and the recorded videos as well, they are really helpful. Plus GDPI में क्या होता है कि आपको, even if you're not from that background, they expect you to know basics about marketing, finance and these things. So those videos of yours really helped me कि मेरे को एक आइडिया मिल गया एटलीस्ट. एंड आई एम फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड एज यू नो, सो आई वाज रियली स्केयर्ड. पता लग गया. वो सब अटेंड किए थे, फाइनेंस फ्राइडे, मार्केटिंग मंडे, वो सब जो चल रहा था. एवरीथिंग आई अटेंडेड एवरीथिंग. कौन तेरा फेवरेट कौन था? सुधांशु के मार्केटिंग वाली, ITC वाली संजना के, वो SCMHRD वाला मुस्तफ़ा, वो थे फेवरेट? मेरे से मुस्तफ़ा सर थे. मुस्तफ़ा बहुत प्यारा आदमी. मुस्तफ़ा ने बहुत लोगों को इस बार करियर में बहुत आगे बढ़ाया. बहुत अमेजिंग. एंड आई थिंक करंट अफेयर्स वन थिंग व्हिच वी अप्रिशिएट, बिकॉज़ वो आता भी नहीं होता है अपने को, एंड वो पता भी नहीं पता. ग्रेट यार. एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. लाइक हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इफ आई रीड न्यूज़पेपर, आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू टेक अवे फ्रॉम इट. आई डोंट नो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट. मेरे को तो एक आर्टिकल दिख रहा है, बट वो सब कंसोलिडेटेड थिंग जो थी करंट अफेयर्स की स्पेशली, दैट वाज रियली हेल्पफुल, क्योंकि किसी से कोई फाइनेंस मार्केटिंग पूछे ना पूछे, करंट अफेयर तो हर इंटरव्यू में दे आस्क. ग्रेट. एंड यू स्पेंड सम टाइम ऑन द डैशबोर्ड ऑफ बिल्डिंग योर इंटरव्यू आंसर. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. व्हाई MBA, वो सब पढ़े थे, सब करके गई थी? सो आई saw every video on the dashboard. I read the dossier, I read the docket. So they were really helpful. Everything consolidated at one place. I mean, of course, if I had prepared
माई सेल्फ फॉर इट, मैं इतना मटेरियल नहीं पढ़ पाती, दैट्स फॉर श्योर। नहीं, डैशबोर्ड में हम यही ऑर्गेनाइज करते हैं कि जितना हो सके मिल जाए, पर कई लोग वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम है, सर इतना कुछ है, अबे जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया होता है, इनको समझ नहीं आती है। बट वो वुड ऑलवेज बाय द वे रेफर कर लेना, इट्स गोइंग बी हेल्पफुल इनसाइड एफएमएस एज वेल। हाँ, वो तेरे को वो तेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड अपन एक्सटेंड कर देंगे so that you can see all those things. Great यार, any parting thoughts to all these people for Cat King family? राहुल सर की बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? राहुल सर की बात ही सुन लो अभी तो इस टाइम पे तो। And I would say कि you would think that it's difficult, and even I thought that it's impossible until it was done. So कभी कभार you'll feel low, so motivation के लिए भी आप राहुल सर को देख लेना, everyone can watch him. It's really relaxing, and he'll bring your energy back with his energy. क्या बात है, how sweet of you, how sweet, how sweet. बस पढ़ो लिखो, पर मैं तेरे को जाने नहीं देने वाला हूँ, तेरे को दोबारा बुलाना है, एफएमएस के अगले साल के बच्चों को ट्रेनिंग देनी है पूरी की पूरी, हेल्प करने आएगी ना? So I am a part of Cat King family forever now. So whenever you'll call, I'll come, because this is the way I can return to you something. How sweet of you, Purvi. I feel so proud. You know, I feel also, you know, arrived. क्योंकि हमारा साथ यहाँ तक नहीं रहता है कि उसके बाद भी you become a part of the whole family and you keep helping other people as well. And I personally feel it's all about helping other people यार. और किसी को आगे बढ़ा सकते हैं लाइफ के अंदर तो क्यों नहीं? And you've done a great job. Great. Sometimes people have resources and everything, but they don't get a good teacher. So I got a good one that I'm really lucky. I'll thank God for that. Appreciate it. I mean, you're making me feel emotional now. But anyway, we're gonna end the video right now. And thank you so much. Mom, Dad को मेरी तरफ से hello बोलना. I hope they're all happy and they're all gung ho about it. They're really happy, sir. They're really happy. And they're thanking you too. तेरी मम्मी ने बताया था, she watches my YouTube videos also sometimes. Yeah, she watches your videos more than I do now. क्या बात है, boys and girls, people are listening to us. Purvi is a role model. आज के बाद तुमने बोला ना, सर मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मेरा कैट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैट के दिन तक तुम्हें ये लगेगा कि नहीं हो पाएगा, और अभी जाके एफएमएस के रिजल्ट आए हैं लास्ट वीक, 10 दिन पहले, 10 दिन हाँ जी सर, 10 दिन पहले, came on 20th 20th of April, सॉरी May, 20th of May पे जाके तेरे को खुशखबरी आनी है, और आईएफटी के रिजल्ट कल आए 8 जून को, समझ रहे हो? तो 8 जून तक तेरे को नहीं पता होगा तेरे हाथ में क्या है, समझ रहा है? और फिर कंफ्यूजन होती है, सर एफएमएस जाएं, इंदौर जाएं, लखनऊ जाएं, आईएफटी जाएं, फिर वो कंफ्यूजन, भगवान करे ऐसी कंफ्यूजन सबके पास हो, वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ग्रेट यार पूर्वी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पूर्वी इनको बोल चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, इनका फ़ायदा होगा थोड़ा सा। So बिल्कुल आप सब लोग please do subscribe to the channel. It will be beneficial for you only. You'll thank me later. So sweet of you. God bless all of you guys. Keep killing. अगले साल तुम्हारा भी वीडियो ऐसा होना चाहिए, and keep your parents proud. Just keep working hard. Thank you Puri for your time. You were awesome. Thank you so much. Thank you sir. Bye bye. Take care. Bye bye.